अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, this is Dr. Iman Afroz from MedExcel and I wholeheartedly welcome you all to the MedExcel Academy, which is a one of its kind online MDCAT preparation platform that aims to provide you guys with ease and innovation. सबसे पहले तो I'd like to congratulate all of you guys. You are past the first step of deciding what career you want to choose. You have decided on a career, you have decided that you want to give this MDCAT and inshallah ta'ala you will become future doctors, and now you are actively working towards that dream of yours. ठीक है, तो सबसे पहले तो congratulations on this huge achievement on going past the first step. And now that you are a part of MedExcel, so we will provide you with guidance and support at each and every step of this journey, inshallah. ठीक हो गया? If I tell you guys about myself, so I was a student of the Federal Board FBISC. I did my FSC in 2021 and I got a 99% aggregate with 1091 out of 1100, achieving the 5th position in the Federal Board. फिर मैंने 2021 में MDCAT के लिए अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई couldn't get in. I am a repeater myself and I reattempted in 2022 where I got 174 out of the 200 and I got into Allama Iqbal Medical College. What this means is, because I'm a repeater myself, ठीक है, I have gone through that phase of facing failure and all that. ना सिर्फ यहाँ पर I am going to guide you guys about what to do to achieve your dreams. I am also going to tell you what not to do. ठीक है, आप लोगों ने क्या नहीं करना, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और किस तरीके से आपने अपने सिलेबस को, अपने जो आप लोगों का करिकुलम है उसको, और साथ आपका जो स्ट्रेस है, आपके फियर्स हैं, उन सबको कैसे मैनेज करके चलना है, सो दैट इंशाल्लाह ताला यू गाइज वुड बी एबल टू एस इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. फिज़िक्स की अगर बात करें तो during my FSC, actually up till my FSC, I did not consider physics as a very interesting subject. I rather thought of it as a boring subject that consisted of just numericals and मुझे ऐसे लगता था कि it is just a little modified version of maths. ठीक है, इसमें maths है, formulas हैं with a little text. But during my MDCAT preparation, I developed a huge fondness for this subject and a huge interest in this subject because all the credit goes to my teacher. जिन्होंने मुझे FSC MDCAT की प्रिपरेशन में गाइड किया, एंड बिकॉज ऑफ हिम आई स्टार्टेड टू सी फिज़िक्स एज द अमेजिंग सब्जेक्ट इट इज़. ठीक है, फिज़िक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट सम फार्मूलाज और सम कॉन्सेप्ट्स, इट इज़ अबाउट लॉजिक, it is about observation. You have to observe the world around you, the everything, the small motions of particles to the macromolecules that are occurring around you, and you have to relate it कि कैसे इनके ऊपर फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं और कैसे आपकी आंखों के सामने जो आपकी फिजिक्स की बुक है वो चलती फिरती है, आपको नजर आती है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट, और इंशाल्लाह ताला आई होप टू इनकलकेट दैट फॉन्डनेस एंड दैट इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स इनटू यू गाइज बाय द एंड ऑफ दिस सेशन. नाउ लेट्स कम 25, द रियल पर्पस व्हाई यू गाइज आर हियर एंड व्हाट यू गाइज वांट टू अचीव. ठीक है, तो इस साल के MDCAT के सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो लाइक द प्रीवियस ईयर्स इट्स गोइंग टू बी 200 MCQs एंड यू विल बी अलॉटेड 3.5 hours, विच मीन्स कि यू विल हैव 210 minutes for 200 MCQs. इसका मतलब है आपके पास हर MCQ के लिए देयर विल बी लिटिल ओवर अ मिनट टू अटेम्प्ट. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं और इस बात में उनको टेंशन होती है कि 1 मिनट के अंदर हम किस तरह जो MCQ है वो सॉल्व करेंगे. तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और ये बात भी आप लोगों को जो है अपने जहन में बिठानी चाहिए कि अगर एक MCQ के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है तो वो आपको बहुत लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स या थ्योरम्स या इस तरह के कोई MCQs नहीं देंगे. वो आपको वही MCQs देंगे जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे और कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनके थ्रू वो सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह ताला इस सेशन में हम आपको एक एक चीज़ के बारे में गाइड करेंगे. ठीक है, फिर हम अगर इसी पेपर पैटर्न में स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो फ़िज़िक्स के आपके पास जो 200 MCQs हैं उनमें से 54 MCQs फ़िज़िक्स के आएंगे
और अगर 54 MCQs आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास ऑलमोस्ट 55 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम होगा। यानी कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हैं अपना MD-CAT का पेपर सॉल्व करने के लिए, तो उन 3.5 आवर्स में से एक पूरा घंटा यू विल बी फेसिंग विद द पोर्शन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होंगे कि दैट 1 आवर विल बी द बेस्ट आवर ऑफ योर होल MD-CAT। ओके, तो अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। PMDC की तरफ से एक ड्राफ्ट सिलेबस इशू हो चुका है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया हो तो पिछले सालों में और इस साल का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कुछ टॉपिक्स उन्होंने ओमिट कर दिए हैं। वो क्यों ओमिट किए हैं? बिकॉज इस साल PMDC इंटेंडेड टू मेक द MD-CAT यूनिफॉर्म थ्रू आउट द होल पाकिस्तान, ठीक है। तो इस वजह से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने निकाल दिए हैं। जो PMDC के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स मौजूद हैं वो हम A to Z कम्प्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। उसमें से कोई भी टॉपिक, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। बुक्स की अगर हम बात करें तो सिंध बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड की जो बुक्स हैं, देयर कंटेंट इज़ एट अ वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। तो हम जब वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो उनकी बेसिक्स में इन दोनों बुक्स के कंटेंट्स कवर हो जाएंगे। KPK की अगर हम बात करें तो KPK में फिज़िक्स के लिए एक तो NTB की बुक इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो एक बुक इस्तेमाल हो रही है दैट इज़ NTB द नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इसके अलावा पिछले कुछ सालों में KPK बोर्ड की अपनी बुक वाज आल्सो वेरी पॉपुलर एंड इट हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टू ऐड टू द कॉन्सेप्ट्स, ठीक हो गया। FBISC का हमें पता है इनकी भी NTB की बुक यूज़ होती है और PTB की अपनी बुक है। सो जो मेजर बुक्स जिनसे कि आपने MD-CAT की प्रिपरेशन करनी है और दैट यू हैव टू कंसल्ट आर NTB एंड PTB। नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक यानी कि जो फेडरल बोर्ड की है एंड PTB, इन दोनों की बुक्स मिला के दे कवर 99% ऑफ द होल कंटेंट ऑफ योर MD-CAT प्रिपरेशन, ठीक है। 99% ये कवर हो गया। जो 1% बाकी रह जाता है जिसमें मेजरली आते हैं KPK की बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत माइनर पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं सिंध और बलूचिस्तान की बोर्ड से। आई थिंक सिर्फ बायो के अंदर जो किंगडम एनिमेलिया वाला टॉपिक था उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे सिंध बलूचिस्तान के। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस साल आप लोगों के सिलेबस में वो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं या नहीं, वरना सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स मौजूद नहीं है। तो दिस इज एक्स्ट्रा 1% दैट वी वुड हैव टू कवर और ये इंशाल्लाह लेक्चर्स के दौरान ही साथ साथ आपको एडिशनल पॉइंट्स के तौर पर बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस से रिगार्डिंग या बुक्स से रिगार्डिंग आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो आप लोगों की मेजर रिकमेंडेड बुक्स हैं विच इज़ NTB उन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जो इंडिकेटरी पॉइंट्स होंगे वो हम आपको साथ साथ बताएंगे कि इस बुक में ये मेंशन है और इस बुक में ये मेंशन है। और अगर MCQ आए तो आपने क्या पॉइंट जो है वो मेंशन करेंगे। अगर आपका प्रोविंशियल MD-CAT होता है तो आप अपनी प्रोविंस की बुक्स को फॉलो करेंगे और अगर आपका नेशनल MD-CAT होता है तो फिर आप किस तरीके से उस MCQ को टैकल करेंगे। ये सारा हम आपको इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स में गाइड करेंगे। सेशन ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो आई एम होपफुल कि आप लोगों के साथ आप लोगों का जो शेड्यूल है वो शेयर हो चुका होगा लेक्चर्स का। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हमारा और आपका साथ रहेगा टिल द कमेंसमेंट ऑफ योर MD-CAT, ठीक है। लेकिन अगर हम लेक्चर सेशंस की बात करें, आप लोगों का कंटेंट जो है, जो आप लोगों का करिकुलम है उसके सेशन की बात करें तो दैट वुड बी फ्रॉम 19th मई टिल द 15th ऑफ जुलाई। आप लोगों के साथ आपका शेड्यूल शेयर हो चुका होगा और आपने देख लिया होगा कि किस किस तरह के इनके टॉपिक्स को हमने कितने दिनों में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू दोज देयर विल बी डेली लेक्चर्स, ठीक है। आपके LMS पे डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड होंगे एंड अलॉन्ग विद दोज लेक्चर्स देयर वुड बी डेली क्विजेस, ठीक है। वी हैव डिसाइडेड कि जो आप लोगों का शेड्यूल है दैट बी 4 डे पर ब्लॉक शेड्यूल। व्हाट दैट इज कि वी हैव डिवाइडेड योर करिकुलम इनटू ब्लॉक्स, ठीक है। हर ब्लॉक में मोस्टली आप लोगों का फिजिक्स से रिलेटेड एक ही चैप्टर कवर होगा। अगर कोई शॉर्ट चैप्टर है तो वो हम 2 कवर करेंगे एंड इट विल बी कवर्ड विद इन दोज 4 days एंड आफ्टर ईच ब्लॉक ऑफ 4 days देयर विल बी अ ग्रैंड टेस्ट इनकम्पसिंग द कंटेंट्स ऑफ व्हाट वी स्टडीड ड्यूरिंग दोज 4 days, ठीक हो गया। इसके अलावा एवरी संडे वी विल हैव अ लाइव सेशन जिसमें कि हम और आप लाइव इंटरेक्ट करेंगे। आपकी जो क्यूरीज होंगी हम वो डिस्कस करेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है हम उसके ऊपर काम करेंगे। उसके अलावा हम पास्ट MCQs डिस्कस करेंगे या फिर जो भी चीज़ आप लोग डिस्कस करना चाहें, जिस भी चीज़ में आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो वील बी ओपन फॉर दैट।
ठीक है जी। इसके अलावा 2 एडिशनल थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन आर, नंबर 1 इज़ एडिशनल लेक्चर्स। अगर हम जिस तरह अभी हमने PMDC के सिलेबस की बात की कि इस साल सिलेबस में देयर आर मेनी टॉपिक्स दैट हैव बीन लेफ्ट आउट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द होल पाकिस्तान। ठीक है, जो सिंध बोर्ड है, जो बलूचिस्तान बोर्ड है, उनमें उनकी बुक्स में इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं गिवन। तो इस वजह से बहुत सारे हाई यील्ड और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस का पार्ट फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपने ये जो सेशन है इसके अलावा उन टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आपको LMS पे अवेलेबल हों। They would not be included in your daily quizzes, they would not be included in your grand tests, and they are not a part of the syllabus of your MD-CAT. ठीक है, but if any one of you students wants to take those lectures for the sake of knowledge and for the sake of building their concepts, तो they are most welcome. हम ये कोशिश करेंगे कि वो लेक्चर्स भी आपके LMS के ऊपर आप लोगों को मिल जाएं। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो दैट इज़ टोटली अप टू यू एंड दैट इज़ एक्चुअली मोर देन इनफ। ठीक है, वो क्योंकि वो आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। दे विल नॉट बी ऑन योर MD-CAT, दे विल नॉट बी ऑन योर एनी ऑफ द लेक्चर्स, एनी ऑफ द क्विजेज दैट यू गाइज टेक आइदर हेयर हमारी एकेडमी में, या फिर आप कहीं और किसी भी एकेडमी में जाएं, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको वो प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए आसानी रहे। एंड सेकेंडली इज़ द रिवीजन क्लासेस। रिवीजन क्लासेस क्या हैं? We plan to end our session by the 15th of July and right now there is no exact date of MD-CAT. अगर आपका MD-CAT डिले होता है, जिस तरह पिछले हर सालों में MD-CAT की डेट आने के बाद इट ऑलवेज गेट्स डिलेड, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वी आर प्लानिंग टू होल्ड लाइव रिवीजन क्लासेस, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स के डाउट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही आप लोगों के साथ हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। वन एडिशनल थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज़ अबाउट द संडे लाइव सेशंस। संडे के लाइव सेशंस में, बिकॉज वी विल बी इंटरैक्टिंग लाइव एंड वी विल बी सिटिंग राइट अक्रॉस ईच अदर, तो आई होप टू एटलीस्ट सॉल्व अ कपल ऑफ MCQs ड्यूरिंग दैट सेशन। ठीक है, मैं आप लोगों को MCQs दूंगी और आप ऑन द स्पॉट सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताएंगे, ताकि जो है मैं भी ये असेस कर सकूं कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है और साथ जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है वो कहाँ तक है। ठीक हो गया। फाइनली अगर हम आपके MD-CAT अटेम्प्टेशन की बात करते हैं कि यू have gone through your revision tests and all, and finally the day of MD-CAT is here and you are sitting in the exam hall and you have the paper in your hand. अब आपने क्या करना है? I'll be talking about the portion of physics. हमने अभी डिस्कस किया कि there are 54 MCQs and for every MCQ you have approximately 1 minute. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपने पैनिक नहीं करना। एक अगर आपके जहन में ये बात होगी कि फिज़िक्स इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड द MCQs ऑफ फिज़िक्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ, तो यू विल थिंक, और आप लोगों को यही जो है वो परसेप्शन होगी कि जो MCQs हैं वो डिफ़िकल्ट हैं और फिर आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो सबसे पहले यू गाइस हैव टू रिमेन काम। आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। आपके सामने पेपर आया है, रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ते ही, या अभी आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, आपने ये देखा है कि द स्टेटमेंट इज़ वेरी लॉन्ग और स्टूडेंट स्टार्ट पैनिकिंग कि भाई ये तो बहुत लंबा MCQ होगा, ये तो 1 मिनट में सॉल्व ही नहीं होगा एंड ऑल दैट। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने क्या करना है, वेरी कामली, वेरी कंपोजडली आपने MCQ की स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है। एक दफ़ा गो थ्रू करें, गो टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टेटमेंट और देखें कि उन्होंने पूछा क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है। बहुत दफ़ा इस तरह होता है MCQs में कि पहले 4 सेंटेंसेस में उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी आपको बताई होती है एंड द रियल क्वेश्चन इज ओनली इन द लास्ट सेंटेंस, जिसका पिछले 4 सेंटेंसेस से कोई लेना देना ही नहीं होता। इट इज़ जस्ट टू क्रिएट अ पैनिक अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लास्ट पे जाना है और आपने वो जो स्टेटमेंट है वो पढ़नी है कि उन्होंने पूछा क्या हुआ है। अब जो उन्होंने बात पूछी होती है वो MCQ या वो जो चीज़ आपसे डिमांड कर रहे होते हैं वो 3 तरह के MCQs में आपसे पूछ सकते हैं।
सबसे पहले एक है आपके पास एक्टिव रिकॉल वाले एमसीक्यूज़। एक्टिव रिकॉल वाले एमसीक्यूज़ कौन से होते हैं? जिनमें आपने डायरेक्ट जो पढ़ा होता है, जो याद किया होता है, या जिस तरह जिन कॉन्सेप्ट्स का हमने रट्टा लगाया होता है वो चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हो जाते हैं। तो इस तरह के आपके एक्टिव रिकॉल के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी वेरी सिंपल एंड यू जस्ट हैव टू रिमेन काम। इस तरह के एमसीक्यूज़ में स्पेशली जहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पूछी जाएं, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द डॉट्स, द डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट इन द आंसर एंड द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 10 की जो पावर है। फॉर एग्जाम्पल एक जो ऑप्शन है उसमें -34 है और एक ऑप्शन में +34 मेंशन है। आपने सिर्फ 34 देखा और आपने ये नहीं गौर किया कि एक में माइनस थी और एक में प्लस थी और आपको जो पहले नज़र आया आपने वो लगा दिया। दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट ऑप्शन यू चूज़, और उसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द एक्टिव रिकॉल। सेकेंड है अबाउट अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स। आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे अभी थ्रू आउट द सेशन, उनको आपने अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनमें जो उनकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब वो आपसे पूछेंगे कि एक हमने पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे प्लेस किया है तो वो अगेंस्ट द जो है वो पोटेंशियल मूव करेगा या अलॉन्ग द पोटेंशियल मूव करेगा, ठीक है। या अगर हम इसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं तो वो टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल मूव करेगा या टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। अब यहाँ पर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो आप अप्लाई करेंगे और आप बताएंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल मूव करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव स्टडीड। तीसरी तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको एक पूरी स्टेटमेंट दी होगी जिसमें आपको मुख्तलिफ डेटा गिवन होगा। एंड पे उन्होंने आपसे पूछा होगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, और आपने वो फार्मूलाज के थ्रू सॉल्व करना होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, द फार्मूलाज विल बी वेरी सिंपल एंड दे विल बी सॉल्वेबल विद इन अ मिनट, ठीक है। इस तरह के फार्मूलाज वहाँ पर पूछे जाएंगे, इस तरह की वैल्यूज़ पूछी जाएंगी जो कि 1 मिनट में आप उनका आंसर ईजीली निकाल सकें। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपने स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है और एंड पे आपने देखना है कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आपसे वोल्टेज पूछी जा रही हो आपसे और वो वोल्टेज स्टेटमेंट में गिवन हो, लेकिन आप लोग इस बात पे पैनिक कर जाएं कि स्टेटमेंट में करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, तो अब पता नहीं हम क्या करेंगे और किस तरीके से हमने ये सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ें, स्टेटमेंट में देखें कि क्या चीज़ आपसे मांगी गई है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो उन्होंने आपको सारा डेटा दिया हो वो सारा आपने यूज़ भी ना करना हो, उसमें सिर्फ कोई 1 या 2 वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी हो। सो रिमेन काम, आराम से आप तहम्मुल से एमसीक्यू को कम्प्लीटली पढ़ें, देखें कि पूछा क्या गया है एंड देन गो बैक एंड फाइंड द डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आप डेटा देखें, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट के एंड पे देखा कि पूछा क्या गया है, फिर आप वापस गए, आपने देखा कि डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एमसीक्यू कंसीडर करते हैं जिसमें एंड पे उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि जी आपने फाइंड क्या करना है। आपने फॉर एग्जांपल वो आपको कह रहे हैं कि वोल्टेज फाइंड करके दें, ठीक है। वोल्टेज फाइंड करनी है आपने, और जो आपको डेटा गिवन है उसके पूरी स्टेटमेंट के अंदर उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन है। आपको करंट दिया हुआ है, उसके अलावा आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, उसके अलावा आपको रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, ठीक है। ये जब हम अभी आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो फिर हम इन सब पैरामीटर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। करंट भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दी हुई है, रेजिस्टिविटी भी दी हुई है। अब रेजिस्टिविटी का फैक्टर जो बच्चा सबसे पहले स्टेटमेंट वो ये फैक्टर देख के पैनिक कर देगा कि भाई ये तो पता नहीं रेजिस्टिविटी कहाँ से आ गई, रेजिस्टिविटी है, करंट है, ये तो बहुत मुश्किल फार्मूला बनेगा और ये फिर हम अप्लाई करेंगे एंड वगैरह वगैरह। जबकि अगर आप देखें तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपको रेजिस्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस के थ्रू ये 2 डेटा सेट्स यूज़ करके आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज़ जस्ट टू कन्फ्यूज़ द स्टूडेंट एंड टू क्रिएट पैनिक, ठीक है। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि एमसीक्यू जब आपके सामने आए, फॉर एग्जांपल आपका फिज़िक्स के एमसीक्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 123 से आपके जो
MCQs हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे गो अप टिल 176, ठीक है। ये सारे के सारे आपके MCQs हैं। आपने सबसे पहले MCQ नंबर 123 को पढ़ा, आपने उसकी पूरी स्टेटमेंट देखी, ऑप्शंस देखे, आपको आता है वेल एंड गुड, आप उसका करेक्ट आंसर लगाएं, नहीं आता कोई टेंशन की बात नहीं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज क्विकली एज पॉसिबल। आपने अपना टाइम बचाना है। ऐसा नहीं है कि पहला MCQ नहीं आता, या फॉर एग्जांपल पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा नहीं आता एग्जाम्पल, खुदा न खास्ता, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई पता नहीं अब ये कैसे सॉल्व होगा। आपने उसको फॉर द टाइम बिंग स्किप कर देना है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह करते 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 आप लास्टली क्वेश्चन नंबर 176 तक जाएं। जब ये हो गया फिर मूव बैक टू द क्वेश्चंस यू हैव स्किप्ड। आप शुरू से देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई इतने सारे तो मैंने कर लिए हैं, ये एक रह गया, इसके ऊपर अब सोचा जा सकता है। सोचना किस तरह है, वो सेम जो हमने पहले डिस्कस किया था कि गो टिल द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, फिर आप देखें कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसके आपने कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े हैं। जब आपने वो फॉर्मूलाज आपके सामने आएंगे फिर देखें कि डेटा सेट्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं जो कि आप फॉर्मूलाज में पुट कर सकते हैं। आराम से सोचेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा, आपने सब पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करके जाएंगे, आपने सब पढ़ा हुआ है, आपको सब आता है, सिर्फ उस टाइम पे आपको याद नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज योर ब्रेन इज़ इन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप अपने आप को काम करेंगे, आप आराम से सोचेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ईच एंड एवरी MCQ विल बी वेरी ईजी एंड इट वुड बी सिंपल टू सॉल्व फॉर यू गाइज। ओके जी, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कि ये जो जर्नी हम स्टार्ट करने लगे हैं MD-CAT प्रिपरेशन की एंड स्पेसिफिकली विद मी यू आर गोइंग टू स्टडी फिज़िक्स बेस्ट वे पॉसिबल, और इंशाल्लाह ताला इट हेल्प्स यू इन द फ्यूचर। One thing that I would like from you guys is for you guys to promise me that once you guys are here with us, with Team Medexcel and with me, there is going to be no negative thoughts or no self-doubt about yourself. ठीक है, there is going to be no procrastination, there is going to be no waste of energy. यहाँ से onwards, inshallah ta'ala, will proceed with a positive mindset. We are only going to think ahead, look ahead, and inshallah we are going to move ahead. And this is going to be the best part of your lives that you are going to remember forever, inshallah. This was all from my side. Thank you very much. Allah Hafiz.